कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। पे नाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना। It is also their first experience quite typically, so it's very rare that somebody says I'm an expert. And Purnima, I use dadi. I don't have anybody. All the people that I know, usually in law, our practice in Canada is, my experience is, those who succeed, it's only because of hard work. There is no real secret. All of you are very proud parents. Most of you have children who are very successful in so many fields. It's not unusual. You are very familiar with hard work. Only hard work works. In relation to witnesses, I do one thing. I always cross-examine my own client for preparation. So I pretend that I'm the other lawyer. And so when I'm preparing, all the time, can you hear me now? Okay, thanks. I don't know, maybe I should. Is this better or? I think if you keep in hand. ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਨਯੂਜੂਅਲ that sometimes you may have a legal issue and you have to appear in court and one should always be fully prepared and your lawyer is your best person to prepare you for your witness. My practice is to prepare, I was saying, by cross-examining my own client. In practice, it works very well because they often will stutter and say, I have no idea what I'm going to say. I say, what are you going to say in the court? That I can't answer this question, you're going to have to answer it. So I find it's very helpful to train yourself whenever you're in court. I hope you're not in court, but if you are, just keep a few things in mind. It is also good practice in anything else. If you are doing an interview and you have to prepare, that the same principles apply. The law is not such a difficult or unique field that is separated from everything else.
if you have your child and you have to prepare for an interview, if you yourself have to prepare for an interview, the best thing is ask a family member to be the interviewer and test you. Ask the questions they will ask. What kind of experience do you have? Why do you think this job is suitable for you? Why do you think you will excel at this job? Don't be shy of the questions because you will have to answer it when they ask anyway. So, and this is a very good, simple preparation technique that I find is helpful. The topic for today, however, is not witnesses, but a very serious one. The topic is elder abuse. This is a serious topic. Let me lay a bit of foundation for it as to how this has become a very important topic in today's world. We know that, for example, in 2011, from Stats Canada, 20% of people who are between 20 and 29 years old, 42% of them are living with their parents. So you can imagine if you are in your 20 to 29 age of university or college and you're living with your parents, it is now as high as 42% in all of Canada, all ethnic communities, the general main white population, mainstream population, that's the number. In 1981, the number was only 27%. So you can see there's a rise of people who are living with their parents. In Europe, the numbers are not very different. You're close to 50%. In the US, the numbers are not very different, close to 50%. You will see that this is a big product of today's economy and today's living style. Probably you can say it's traceable to the economics of every country. What we've gone through, Great Recession of 2008, today's price index you all know very well about. It's not unusual that children will be living at home for quite some time. So if we have that as a realistic scenario, there's a lot of interaction between older folks who are seniors and their children, and even their grandchildren. So a lot of what we find is elder abuse. Probably more instances will arise in the near future because there's a lot more interaction. But this is of one type of interaction. Not all families go through that, of course, and that's good. But in Canada, we have long-term care homes. We have retirement homes. And these are, a lot of people will think they are unique to white people and their traditions, which is generally the case. In our communities, parents live with their children. That's not unusual. And that's also a lot of other ethnic communities. This doesn't mean that elder abuse does not exist. A lot of people in their elderly years may actually be very uncomfortable living at home. And one should not be presumptuous, and I certainly would not be presumptuous that everybody sitting here feels every day very happy if they are living with their children. If they're living independently, there are challenges and they have to maintain their life. It's also a topic of a lot of confidentiality because very few people are willing to talk about how they feel, what their living status is, how they are living. So it's a difficult subject which everybody may not be equally comfortable to talk about when it comes to themselves. And if anybody does feel that they are facing a lot of neglect and a difficult circumstance, or you know of somebody who may be in that situation, then you should be able to seek help. It is important to seek help. There is help. You will always, if you try hard, you will find the help. And if you need it, you must seek it, because if you don't, nobody will know. And there's no point pretending that you have a wonderful life if you have a miserable one. And you should not live in misery, not continue to live in misery, because if you're above 65 and you're living with low income, bad health issues, and not much support, then you deserve the support and you have to go out and seek it, try wherever you can, tell somebody. Don't keep it all within yourself. We all have a right to dignity. We have a right to a dignified existence.
We all have a right to some affection from people who are around us, and we certainly have a right to be treated fairly and well. This country is a country of laws, and the thing is, the more you tap the laws, the better off you will be. It doesn't matter what the situation is. And elder abuse is a very personal situation where you ought to tap the law and do everything you can to protect yourself. It's very important to do this at every stage that you feel that. So, Can go we say ahead. that in Punjabi too for the other people Okay, maybe? so I will, one, it's harder to translate, so what I'll do is I'll just switch between Hindi, Punjabi, and English. So I can do the whole thing in Punjabi or Hindi too. What, is there a preference for me to do the whole thing in Hindi? Some things are easier stated. Some things are easier stated in English. Yeah, in between. In between? Yeah. Okay. That's the best. So I'll keep switching, and you can test which is best, and there will be a question after that. So my fluency is obviously maximum in English, so that's my comfort. A lot of legal terms are in English, लेकिन हिंदी में भी हम आपको इतना कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर संविधान है तो यहाँ पर भी है. तो उस संविधान के हिसाब से जितने भी सिद्धांत जो संविधान के साथ जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर भी चलते हैं. यानी कि कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स इज एज एप्लीकेबल टू एवरीबडी. सो इंडिया में तो हम फिर भी संविधान की बातें किताबी करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर आपका कोई वकील है और आपको केस आप कर रहे हैं तो आप संविधान के सिद्धांत पे अगर आप कोई दलील करना चाहें तो वो ज़रूर मंजूर है और कोर्ट उसको ज़्यादा ना कर देगा. आप अपील भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बनावटी या किताबी बातें नहीं हैं. ये बहुत ही अहमियत वाली चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ को समझ के चलें और इसको आप इस्तेमाल करें तो कानून तो आपके फ़ायदे के लिए ही बना है और चोरों चक्कों को अंदर करने के लिए बना. लेकिन हर चीज़ कानून में इस बात पे आधारित है कि आपको खुद ही अपना केस चलाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा. अगर हारे तो दोबारा ट्राई करना पड़ेगा. ये तो आपको कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती आपके लिए, तो खुद ही करना पड़ता है. तो इसलिए आपको सेल्फ हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो देयर आर 800 नंबर्स यू कैन सीक. देयर इज़ अ 800 लाइन यू कैन कॉल. एक मिनिस्ट्री ऑफ अटॉर्नी जनरल की एक लाइन है जहां आपको 4 घंटे का एक फ्री वकील मिलता है अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का किसी को इशू हो जाए. तो अगर आपको कोई जान पहचान किसी के पास नहीं है और आप पता कर सकें, मिनिस्ट्री ऑफ अटॉर्नी जनरल की हॉटलाइन होती है, तो वो आपको 4 घंटा एक के लिए वकील देते हैं. ये है एक जनरल एक लाइन सेक्सुअल असॉल्ट की. आम तौर पर ये देखा गया है कि जो शेल्टर्स हैं, जो मेरी रिसर्च कहती है, वो जो औरतों को अब्यूज़ है, यंग औरतों को जिनके पास बच्चे हैं, वो शेल्टर्स में जाके अपने को प्रोटेक्शन ले सकते हैं. और आम तौर पर जो सीनियर्स हैं वहाँ पे शेल्टर्स में या जगह की कमी है या इतनी डिमांड नहीं है या वो कॉल नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर और यंग जो औरतें हैं वो ज़्यादा शेल्टर्स में होती हैं. तो अगर कोई एल्डरली है, आपको जानता है और उसको कोई ऐसी ख़ास तकलीफ़ है और उसको अब्यूज़ है, तो फिर आपको इतना आसान तो नहीं है कि आपको एकदम घर की जगह मिल जाए, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप कैसे आप अपनी जगह रहने की बदल सकते हैं. लो इनकम हाउसिंग में जा सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जहां आपको रहने के लिए बेहतर आपकी कोई जगह बन सके. लेकिन ये चीज़ें जो हैं, एक सबसे पहली चीज़ तो फिज़िकल अब्यूज़ है जो कि बड़ा 3 to 4% है जो कि रिपोर्टेड है. अनरिपोर्टेड तो बहुत सारे केस ज़रूर होंगे और 80% इससे ज़्यादा होगी. लेकिन इतने परसेंटेज तो डिक्लेयर करते हैं औरतें 60s और 70s में कि उनके साथ अब्यूज़ होता है. किसी टाइप का अब्यूज़ है, मारपीट का हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, और भी आप सोच सकते हैं कि ज़िंदगी में जैसे आप अखबारी चीज़ें सुनते हैं, जो ज़रूर अब्यूज़ तो है ही है. सोसाइटी में हर जगह अब्यूज़ तो होता ही है, लेकिन इसको टैकल करना और पर्सनल तौर पे इसका मुकाबला करके अपने को बचाना बहुत ज़रूरी है. तो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है जो सेकंड कैटेगरी है, जो कि हरासमेंट है, जो लोगों को इंटिमिडेशन है, किसी को डराना है, फियर क्रिएट करना है,
ये चीज़ भी बहुत कॉमन है। इस चीज़ में दुख की बात है कि हमको ये ज़रूर सोचना है कि ये चीज़ जो है, जो साइकोलॉजिकल है, ये ज़्यादा चलती है। मारपीट वाले तो फिर भी आपको पकड़ के आप पुलिस पे भी कॉल कर सकते हैं, 911 कॉल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है उसको टैकल करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो उसकी रूटीन हर रोज़ नहीं होती और उसमें जैसे हम कहते हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो पैसिव अग्रेसिव हैं कि कभी आपको इनडायरेक्टली तंग करना, आपको आपकी लाइफ को आपको बार बार हरास करना, ये चीज़ जो है नर्सिंग होम्स वगैरह में काफ़ी होती है और लॉन्ग टर्म केयर में भी होती है। लॉन्ग टर्म केयर वाले जो हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म केयर के जो डायरेक्टर हैं वहाँ स्टेट शिकायत कर सकते हैं, उनका एक प्रोसीजर बना हुआ है। रिटायरमेंट होम जो है उनका भी एक प्रोसीजर है, उनकी एक अथॉरिटी बनी हुई है, रेगुलेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके थ्रू जो रिटायरमेंट होम में रहते हैं उन वो अपनी को प्रोटेक्शन जो है वो ले सकते हैं। और अगर कोई भी ओनर मैनेजर है ऐसी संस्था का तो वो उसकी ड्यूटी बनती है कि ऐसी जो रिपोर्ट है उसको रजिस्टर करे और उन लोगों की हेल्प करे जो रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हो गई उन लोगों की बातें जो रिटायरमेंट होम्स में हैं और लॉन्ग टर्म केयर में हैं। जो घरों में रहते हैं और उनके साथ अगर अब्यूज़ होता है तो पुलिस की नंबर तो आप लगा ही सकते हैं। मिनिस्ट्री का भी अगर आप किसी की हेल्प करना चाहें, किसी की खुद की हेल्प करना चाहें और किसी की हेल्प करना चाहें तो आप जो अपने तौर पे कर सकते हैं, किसी सोशल वर्कर को ढूंढ सकते हैं। अगर आप किसी सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर्स को इन चीज़ों का काफ़ी ज्ञान होता है कि कहाँ जाएं और किसको टेलीफोन करें और कहाँ से आपका रास्ता नाप के आपको जोड़ के किसी और के साथ जिसकी आपको इस एरिया में हेल्प कर सके। सो ये चीज़ें तो हैं कि अब्यूज़ की जो कि आम सीवियर एलिमेंट्स हैं जिनके जो काफ़ी बुरी हालत में अब्यूज़ है, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है हमारे फैमिलीज़ में कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप में जहाँ पे बच्चों के साथ रहना है हम अपने को इस तरीके से जी सके कि हमारी जो रोज़ की जीना है वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हर बात पे बहस हो और हर बात पे ड्रावा हो, हर बात पे कंपैटिबिलिटी ना हो। तो इसमें हमारी कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम्स जो जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया में तो हम देख के ही आए हैं, क्योंकि मोस्टली जॉइंट फैमिली से ही आए हैं। तो आजकल आप देखने की बात है, कोई इंडिपेंडेंट रहते हैं सीनियर्स, कोई बच्चों के साथ रहते हैं। जो बच्चों के साथ रहते हैं उनको चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। ये तो वेदर आप रिपोर्ट करना चाहेंगे या नहीं, कोई ऐसे इंसिडेंट कोई पर्सनल है कि किस लेवल तक एक ऐसी चीज़ पहुंच गई है कि वो बर्दाश्त के बाहर है। अगर बर्दाश्त के बाहर है ज़रूर आपको हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुड़ के जी रहे हैं, उसमें आपको बीमारी भी हो सकती है, बार बार डॉक्टर के पास जाना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा फील होता है तो ज़रूर आप किसी ना किसी से बात करें। जैसे ये क्लब भी है, ज़रूर आप किसी को ना किसी को बताएं कि मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि हेल्प के बिना जो आदमी हेल्प ना मांगे उसको हेल्प कहाँ से मिलेगी। किसी की शक्ल पे नहीं लिखा हुआ कि उनकी लाइफ कैसी है। तो हमको कोशिश तो यही है, खुशी भी यही है कि यहाँ सब ठीक हैं, लेकिन आपको कई जान पहचान के लोग आते हैं जो डिफ़िकल्टी में हैं और उनको हेल्प करने के लिए आपको ये सब चीज़ों की जानकारी मेरे हिसाब से अच्छी है कि आप किसी और की अगर हेल्प करना चाहें और आपको कोई हेल्प मांगे तो आप उसको तो हेल्प कर सकें, अगर आपको खुद नहीं भी हेल्प चाहिए। सो अब एक ज़रूरी टॉपिक साइकोलॉजिकल में ये है कि हमको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर बच्चों के साथ रहते हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं तो अपना टाइम हमको कोशिश यही करनी चाहिए इस तरीके से अपनी लाइफ अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़नी चाहिए। जैसे आप यहाँ आज बैठे हुए हैं, इसमें बड़ी खुशी की बात है कि आप अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, यानी कि आपके बच्चे हैं आपके साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो आप इस समय अपना टाइम बिता रहे हैं। आप किसी से वो चीज़ सुन रहे हैं
जो आपके बच्चों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनको कोई इस चीज़ पे दिलचस्पी भी नहीं है, और वो सही बात है, क्योंकि 30 साल पहले आपने भी ऐसा टॉपिक कभी अटेंड नहीं किया था, क्योंकि आपकी नौकरी लग रही थी या इमिग्रेशन में आपकी अपील चल रही थी। तो ये चीज़ें तो जब आपको कुछ 65 के बुढ़ापे के आसपास ही इन चीज़ों की अहमियत होती है। तो एक साइकिल है लाइफ का, तो कुछ तरीके से हमको समझना ज़रूरी है। बच्चों को से ये ज़िंदगी का जीना कैसे है ये भी सिखाना भी बड़ी ज़रूरी है। तो जैसे हम योगा करते हैं, फिजिकल योगा तो काफ़ी होती है, लेकिन असली योगा तो वही है जो मेंटल योगा। मेंटल योगा जो है, जो माइंड के ऊपर कंट्रोल हो, सबसे मुश्किल चीज़ यही है। जितने भी दुनिया के फिलोसफर हुए हैं, उनकी अगर जितने ज्ञान की उनकी अगर कोई वैल्यू है, तो वो उनमें बहुत ज़्यादा है कि माइंड पे कंट्रोल कैसे किया जाए। सो जितनी योगा माइंडफुलनेस के साथ जुड़ी हुई है, वो बहुत ज़रूरी है, जो हमको हर समय प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जितने हम, और ये इस प्रैक्टिस के लिए कोई उम्र की बात भी नहीं है, हर आदमी को ही करनी चाहिए, हर औरत को करनी चाहिए, हर बच्चे को करनी चाहिए, क्योंकि ये माइंडफुलनेस को, माइंड पे जो कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और जितना हम डेली प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को कि कैसे माइंड को कंट्रोल करें, कैसे अपना गुस्सा ठंडा करें, कैसे अपनी बात को इस ढंग से कहें कि क्लेश ना पड़े, किस ढंग से कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करें, ये चीज़ें जो कभी कभी लोग किताबी समझते हैं, यही एल्डर अब्यूज़ में भी बातें बढ़ के उस हद तक पहुंच जाती हैं कि हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो हमको, क्योंकि खास करके हमारी कम्युनिटी में शायद एल्डर अब्यूज़ उतना प्रोमिनेंट ना भी हो, लेकिन अब्यूज़ ना भी हो, हमको अपनी लाइफ सुधर के अच्छी तरह चलाना तो बहुत ही ज़रूरी है, और अपने बच्चों के साथ रहना भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की इकोनॉमिक वैल्यू में जितनी सर्कमस्टांसेस हैं, बच्चों की भी इनकी इतनी इनकम्स नहीं है। उनको कई बार बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप के साथ ही रहें। जैसे मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स बताया है, 50% तो आजकल सारी दुनिया में ही है कि 30 इयर्स से कम जितनी भी जो रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, पड़ी घर से रहें। सो ये नेचुरल है, अगर बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई क्लेश तो पड़ेगा ही। ये तो कोई इतनी नई बात तो नहीं है, और हर क्लेश कोई एल्डर अब्यूज़ वाला भी इशू नहीं है। वो तो ये है कि हमको किस ढंग से रहें कि हमको आगे बात जो है, बात का बतंगड़ ना पड़े। ये चीज़ें सीखने और समझने के लिए जो मेंटल योगा और माइंडफुलनेस है और मेंटल कंट्रोल है, ये चीज़ तो, इसका ज्ञान तो प्रैक्टिस से ही होता है और हर एक को ही चाहिए। और आप अगर अपने लड़की को जो 35 साल के कहेंगे कि मेंटल योगा करो, तो वो ये आपको ये नहीं कह सकते भी आप क्यों नहीं करते। सबको ही करनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं। तो इस चीज़ का जो हम रिलीजन में बोलते हैं, जो श्लोक बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो हर चीज़ की व्याख्या करते हैं और सुनते हैं, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे मंदिर में हो, जहाँ भी हम सुने, चाहे मस्जिद में हो, हम ये सुनना एक चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर कायम करना बहुत दूसरी चीज़ है। तो हर चीज़ पे अच्छी चीज़ सुन के उस पर कायम करना और उसको प्रैक्टिस करना, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ताकि एल्डर अब्यूज़ जो है आ ही ना सके। और हमारे यहाँ तो क्योंकि फैमिलीज़ में इकट्ठा रहना ज़रूरी ही है, समझ लीजिए, या रहते ही हैं, तो ये चीज़ को बचाने के लिए एक अपनी सुधार ढंग से रहना, सुधर के रहना, ये हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अगला टॉपिक जो है वो मैं फाइनेंशियल अब्यूज़ के ऊपर बताना चाहता हूँ। फाइनेंशियल अब्यूज़ जो है, ये सबसे एक किस्म से काफ़ी मतलब ख़तरनाक, और कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा है। बहुत सारी औरतों को बैंकिंग के सिस्टम में इतना तजर्बा नहीं है, उनके पैसे कहाँ से आते हैं, हस्बैंड कहाँ पे क्या काम करता है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है।
आजकल तो खैर ऐसी चीज़ कम है, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन रेट हमारा G7 में कनाडा का बहुत हाई है, सबसे हाईएस्ट एजुकेशन हमारे कंट्री में है। ऑलमोस्ट 57% ऑफ एडल्ट्स हैव यूनिवर्सिटी डिग्री और कॉलेज एजुकेशन। सो लेकिन फिर भी जो एल्डरली हैं उनको, कईयों को मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट नहीं है, स्कूलिंग उनकी इतनी नहीं है, बैंक में उनके हस्बैंड्स ने कोई ख़ास उनको कंट्रोल नहीं दिया और उनको ख़ास इस चीज़ का पता नहीं है उनके पैसे हैं कितने अकाउंट में है, कौन से अकाउंट में है, बैंक कौन सा है, कि कितने अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये चीज़ें कईयों को अपने फैमिली में नहीं पता है। और अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो ये इन चीज़ों से फाइनेंशियल अब्यूज़ के बढ़ने की संभावना हो जाती है। और ये जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है ये एक कारण बन जाता है कि किसी और को, फैमिली मेम्बर को अब्यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, चाहे वो आपका लड़का या लड़की क्यों ना हो, आपकी बहू क्यों ना हो। ये तो ज़िंदगी बनी हुई है। ये चीज़ तो कई बार हम यही सोचते हैं जी ऐसा तो हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आगे पीछे पूछते हैं आप लोगों से तो आप देखते हैं कईयों के साथ हो रहा है, तो और आपके साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत संभल के चलने से आपको कुछ नुकसान नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूँगा कि फाइनेंशियल जो अब्यूज़ है वो आम तौर पे फाइनेंशियल फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ होता है कि आपको पता ही नहीं होता और आपके बैंक के पैसे नहीं हैं, आपको पता ही नहीं होता और आपकी जो इंटाइटलमेंट है, जितने आपको पैसे मिलने चाहिए, जितने आपका हक बनता है, आपके पास है ही नहीं। तो ये कई लोग इन्हीं चीज़ों में ही रहते हैं। तो जहाँ डाइवोर्स होते हैं तो वहाँ ये चीज़ें लाइट में आ जाती हैं, कोर्टों में चलती हैं, तो फिर पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तो फिर पता लगता है किसके पास कितने छुपे हुए थे, क्या कई चीज़ें डाइवोर्स के जो फैमिली लॉ की प्रैक्टिस होती है उसमें बहुत सारे नतीजे इन चीज़ों के सरप्राइज एलिमेंट होते हैं। बहुत हैरानगी होती है अभी इतना पैसा छुपा हुआ है एक स्पाउस के पास और दूसरी जो है उसको पता ही नहीं इतने सालों से। सो ये चीज़ें जो हैं फाइनेंशियल अब्यूज़ में ही आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जितनी भी आपके, अगर आपकी इनकम है, पेंशन है, जो भी आपकी है, उसको आपको कायम रखना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी एंटाइटलमेंट है। ये भी आपको देखना चाहिए कि किसी का स्पाउस है तो वो कोई ऐसे लोन ना बैंक से ले सके कि आपके साइन भी हो चुके हों और देखा तो कुछ गड़बड़ हुई, आपको 5-7 साल के बाद आपकी एज 78 है और आप डाउन साइज करना चाहते हैं, तो देखते हैं आपको पता चलता है जी कि आपके तो बैंक जो मॉर्गेज है वो तो जो आप सोच रहे थे हाउस पेड ऑफ है, उस पर तो जी 7 लाख का ऑलरेडी लोन चढ़ा हुआ है। तो आप कहेंगे जी हमारा तो हाउस 15 साल पहले पेड ऑफ है। अगर आपको पता ही ना हो कि आपकी छुपे हुए ही किसी ने लोन ले लिए हैं और आपके लड़के लड़की के साइन चल रहे हैं और आपको पता ही ना हो, तो ऐसे भी केस चलते हैं। तो ये तो आपको आपकी क्या हो सकता है कि ऐसे केस यहाँ किसी को पर्सनली ना ही लगे तो अच्छा है, लेकिन आपके साथ क्या गुजर रही है आपको पता होना ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो ना सकें और आपको कंट्रोल होना चाहिए और आपको चाहिए कि मौके मौके पर आप पता करते रहें कि आपकी फाइनेंशियल हालत क्या है, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, खर्चे कितने हैं और आपके बच्चों को के साथ उनको अगर कुछ चाहिए तो आप क्या दे सकते हैं। और आपकी अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी है क्योंकि आप सब कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप 80 साल के हो जाएंगे तो और चल नहीं सकेंगे तो आपको वॉकर ही सिर्फ नहीं चाहिए होगा, बहुत चीज़ और चाहिए, कई सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो बच्चे तो अच्छे ही निकलें तो अच्छा है, और अगर वो आपकी हेल्प ना करना चाहें तो आपके पास आपकी पेंशन या इनकम या घर के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए शर्म ना करें अपने बच्चों के सामने कहना कि भाई हमको आप मेरे और भी ध्यान रखें। अगर आप बच्चे आपको इग्नोर करते हैं तो आप कहें जी ये मेरे लिए भी है, सभी अपने को बचाते हैं, तो ये तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप मेरे ही नाम पैसे रखो। क्यों नहीं रखते आप? अगर नहीं है तो आप फिर भी पैसे अगर लेते भी हैं तो हर चीज़ का रीजनेबलनेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूछें ही ना, बात ही ना करें
अगर आप नहीं बात करेंगे, डरेंगे, शर्म करेंगे, तो फिर आपको एडवांस एज में ये चीज़ें, इन चीज़ों से बचने के लिए यही है कि आप सारे वक्त हर समय ये चीज़ों का ज्ञान आप ग्रहण करें, लोगों से पता करें और फैमिली में इस चीज़ की चर्चा करें। ज़रूर, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ ज़रूरी है, जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, आप बच्चों को डाउन पेमेंट देना चाहते हैं कि आपकी पैसे आपने कमाई की है, अच्छी है, आपने इतनी मेहनत की है सारी उम्र, आपके बच्चों को आजकल डाउन पेमेंट चाहिए, तो आप कहते हैं ठीक है, मैं बच्चों की हेल्प करूंगी, मैं डाउन पेमेंट दूंगी। तो ठीक है, अगर आप डाउन पेमेंट देना चाहते हैं तो आप ऐसी चीज़ को ये ना समझिए कि ये तो मेरा बच्चा ही है, तो मैंने दे दिया, तो मैंने सारी उम्र तो उसको दिया ही है, तो अब डाउन पेमेंट में मैंने क्या सोचना है। तो मैं ये डिस्कशन करूंगी तो वो कहेंगे भाई कमाल है मम्मी, तुम मेरे पे शक कर रही हो। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा समझने के लिए कि ये शक की बात नहीं है, ये उम्र की बात है। और आप इंडिया के जॉइंट सिस्टम में भी नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे आपको हेल्प करने कोई सब सारी दुनिया नहीं आ सकती। तो आपका ये ऐसी चीज़ जो है कि बच्चों को डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो इस चीज़ की लिखत पढ़त बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वकील के थ्रू ही आप कागज़ बनवा के और एक डाउन पेमेंट के क्लियर कट एग्रीमेंट बनाएं। क्योंकि अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि आप डाउन पेमेंट बच्चों को, अगर जैसे आपके लड़की है या लड़का है वो शादीशुदा है, तो आप डाउन पेमेंट दोनों के नाम पे ऐसे मत दीजिए। सोचने वाली चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप ऐसे आप दे देते हैं तो आज की डेट में तो दोनों नए शादीशुदा हैं, आप कहते हैं मुझे क्या फ़र्क है, दोनों ने इकट्ठा ही रहना है, कोई मैंने एक को दे के दूसरे से लेना थोड़ी है। सही बात है, लेकिन वक्त ऐसा ही है कि आपको 10 साल बाद क्या होगा इस चीज़ का पता नहीं है। और आज आप जितने भी मेरे सामने हैं, आपकी एवरेज उम्र अगर मैं 60 भी लगाऊं तो 10 में आप 70 पे भी गॉड विलिंग हेल्थी होंगे। आप तो हेल्थी होंगे तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। आप कम से कम आज की डेट में आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उससे अगर बढ़ ना सके तो कम तो नहीं होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यही कहूँगा, जैसे आपको डाउन पेमेंट है तो आप अपने एक बच्चे जो आपका बच्चा है उसके नाम पे ही डाउन पेमेंट करें और एक एग्रीमेंट में लिखें कि ये एग्रीमेंट जो है ये साफ मैं पैसे दे रही हूँ और ये मैं पैसे इस हिसाब से दे रही हूँ कि मैं वापस भी ले सकती हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़े। अब ये आपको नहीं बेटी, हाँ देखिए ना, अब बड़ा नहीं वो फर्क नहीं पड़ता। चलो हम कहते हैं समझ लीजिए बेटी के पेरेंट्स हाँ नहीं जो daughter and son-in-law had a happy marriage for 15 years. They were given a home, paid off home by the parents. By the girl's parents. Yes, so let's say girl's parents, same idea. लेकिन लेफ्ट साइड का सो जो माँ बाप है उन्होंने घर दिया, अब वो मैरिज ही बच्चों की नहीं चली, तो ये वापस माँ बाप को घर मिलना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन। जब बच्चों के नाम पे लिया उन्होंने, बच्चों के नाम पे लिया तो बच्चों का हुआ। ओके, एक पॉइंट ये हो गया, बच्चों के नाम पे लिया तो बच्चों का। ओके, वो जो दूसरा वकील है वो कहता है जी आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो तब दिया था क्योंकि माँ बाप जो है उन्होंने ये सोचा था कि इनकी मैरिज चलेगी। आज की डेट में ये भी नखिद और हम बुढ़े हो गए, हमको चाहिए। कोई ऐसा आदमी है कहते हैं हमको वापस मिलना चाहिए। अगर माँ बाप ने फोन किया तो उनको लेके दिया, वापस मिलना चाहिए। आप वापस मिलना चाहिए क्योंकि माँ बाप ने पे किया ना सारा मॉर्गेज, तो माँ बाप ने। आप क्या कहते हैं? आपने देखिए जी, आपको पहले तो आपको वकील मुझे करना पड़ेगा, लेकिन समझ लो मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप अपनी क्या आर्गुमेंट देंगे? ये समझ लीजिए कि डॉक्टर साहब जज बने और ये बोल नहीं सकते, फिर आप नहीं भाई साहब बात सुनिए, अगर उनके पास सारा प्रूफ है कि मॉर्गेज पेरेंट्स की उस बेसिस के ऊपर तो पेरेंट्स को मिलना चाहिए। अगर उनके पास
पेरेंट्स को मिलना चाहिए। लड़की को मिलना चाहिए। दोनों के नाम पे है ना। लड़की के पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं तो लड़की entitled to have them। नहीं वो अलग बात है के नाम पे 50-50। सो मुझे बच्चे दे रहे हो ना सो ये अब ये देखिए ऐसा एक और पॉइंट बताऊं, अगर एक पेरेंट्स ने डाउन पेमेंट खाली दी हो ना, हाँ जी। तो अगर सेपरेट बच्चों ने मॉर्गेज दे रहे हैं, राइट, जब सेपरेट होगी ना तो जो डाउन पेमेंट है ना वो पेरेंट्स को वापस मिलेगा, सिर्फ डाउन पेमेंट, बिकॉज दे हैव। तो आप ये देखिए, आप ये भूलिए एक मिनट, आपके जो रिटर्न में अगर दिया हो कि वी आर पेइंग सो मच मनी टू अवर किड्स, लेकिन जब डाइवोर्स होएगा तो वो जो ऑलरेडी पेरेंट्स ने शुरू में दिया ना, वो या तो बेटी का निकाल के फिर सो क्वेश्चन ये है, हाँ जी, अच्छा जी ऐसा है। जी आप बताइए। अब एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने एक चीज जोड़ काफी जोर से कही है, जो रिटर्न में है तो फिर है। बिल्कुल यस आपने और भी चीज कही है, आपने दो चीजें कही और आपने अच्छा किया कि दूसरी भी चीज कही। डाउन अगर नहीं, वो आपने एक तीसरी भी चीज कही। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि यहाँ पर इन्होंने भी बिल्कुल सही, वो आनंद साहब ने कहा कि देखिए एक माँ बाप ने घर दिया है बच्चों की के लिए कि उनकी मैरिज चल रही है, उनको एक चीज हमने दी है, आज मैरिज ही नहीं चली, हमको जरूरत है, हमको क्यों नहीं वकालत में पैसे, हमारा घर हमको क्यों नहीं वापस मिलता, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो रिटर्न में क्या है ये जरूरी है कि नहीं। ये जरूरी है। तो अब ये आ गई ना बात, तो जो मैंने आपको पहले, तो इसका मतलब यही है कि जो मैंने आपको पहले कहा है कि ये राइटिंग में होना बहुत जरूरी है कि मैंने घर दिया तो किस हिसाब से दिया और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, वापस लेने की है, ये पैसे वापस मुझे किसी कंडीशन में वापस मैं मांग सकती हूँ, उसमें लिखा होना चाहिए कि आपने किस हालात में क्या किस कंडीशन में आपने पैसे दिए, ठीक है। सो वो एक चीज और भी इससे क्लियर हो गई है कि आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को पैसे दे रहे हैं ना कि दो को, क्योंकि एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे आप, क्योंकि अगर आपने दोनों को दिया तो फिर एक अगर उन दोनों में प्रॉब्लम आ गई तो जो दूसरा है वो कहेगा जी ये तो हमको मेरी मदर इन लॉ ने मुझे भी दिया था, अपनी डॉटर को दिया तो डॉटर को दिया। आ गई ना बात। सो एक चीज क्लियर हो गई कि आपके पास सब नंबर 1 ये अग्रीमेंट में शादी होती है तो बच्चे इकट्ठे रहते हैं तो दोनों को ही जाते हैं, दोनों के नाम पे कर दिया जाता है। ये बात है, आपने जो कहा जाता है, लेकिन अगर नहीं लेकिन अगर आप लिख के देते हैं कि ये मेरी लड़की को जाए तो आपके दामाद को ये नहीं कहना चाहिए वो तो लड़की को दिया है तो वो आपने उसको घर से थोड़ी निकाला है। भाई साहब एक पॉइंट में बताओ, ये जो कह रही है ना दोनों के दिया, जब डॉरी दी जाती थी, मैंने कईयों के ना हमारे फ्रेंड्स का इंडिया में कोई केस हुआ था, सेपरेशन हुई थी, तो जो डॉरी दी होती है ना उसको कैलकुलेट करके कितना पैसा शादी के टाइम दिया था वो उनको लड़के वालों को देना पड़ा था। चलो देखिए अब ये हम ये डाउरी को तो चलो आपको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस केस में माँ बाप को वो जो घर है वो उनको घर वापस नहीं मिला, क्योंकि 15 साल निकल चुके थे इस बात और स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस है प्रॉपर्टी के मैटर में 10 साल का, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में है तो वो 2 साल का। सो आपको समझ आई कई चीजों की, एक अग्रीमेंट लिखी होनी चाहिए, दूसरी किसको दिया ये क्लियर होना चाहिए, तीसरी ये अगर आपका झगड़ा होना है
कितने टाइम में आपको अपने पैसे क्लेम करने पड़ेंगे। समझ लीजिए। चौथी, आप मजे के लिए ये चीज कोई सोचता नहीं है कि अगर इनका झगड़ा हो तो फिर अगर आप ये सोच सकते हो मैं क्या करता फिर मेरे को आपने याद कराना था नहीं, आपने मेरे को डॉक्टर साहब ने मुझे क्यों याद किया और ये भी कहा कि अगली बार भी बुलाएंगे। वैसे भाई साहब ये मैं बता दूं, आपको ही बता दूं कि आजकल जो बच्चों की शादियां हो रही है जो देख रहे हैं तो पहले ही सोचना चाहिए कि किसी टाइम भी अलग भी हो जाएंगे। तो ये देखिए ऐसा है, आजकल सीधी सी बात है कि हम अगर आप शादी तो कर लेते हैं, अगर आप याद रहते हैं तो आपको याद में बहुत चलने पड़ेगा। पक्की बात है। तो हमने काफी मतलब उसको ये नहीं किया कि लड़की के नाम पे दिया, लेकिन उस वक्त ये होता है कि लड़की और ये लड़का अलग थोड़ी है, इकट्ठी है ना, दे दिया। लेकिन कोई रिटर्न नहीं था, कुछ नहीं था, कोई राइटिंग और कुछ राइटिंग में नहीं था, मैंने दे दिया, पैसे दे दिया, देखिए काफी दे दिया, आप जो लेकिन कुछ भी नहीं। देखिए ऐसा है, आप जो कह रहे हैं सारे हिंदुस्तान का बिजनेस ही ऐसे ही चलता है, लिखन पढ़ने के बिना ही मिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रांजैक्शन लोग ऐसे ही करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आप कनाडा में रह रहे हैं, एल्डर अब्यूज का टॉपिक आप सुनने आए हैं, आप समझते हैं कि ये दुनिया आप यहाँ हैं नहीं, इंडिया में भी आपका डिवोर्स रेट बहुत हाई है, आप भूल जाइए इंडिया में ज्यादा केस हो रहे हैं और वहाँ पे तो जिस टाइप के केस होते हैं आप सोच ही नहीं सकते। यहाँ तो फिर आप कनाडा के हिसाब से किसी चीज का अंदाजा भी लगा सकते हैं, पेरेंट्स को भी अंदर कर देते हैं। वहाँ तो कुछ आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या कहने का मतलब यही है कि चीज राइटिंग में होना अत्यंत आवश्यक है। भाई साहब एक और पॉइंट बताऊं, आजकल तो लड़का लड़की की जो शादी होती है, लड़का नहीं पहले प्रीनप हाँ वो आपको मैं बताऊं, वो भी तो करा रहे सो हैं। एक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट होती है, सो पहले नहीं था, अब हुआ। अब देखिए हो गया ना, एक प्रीनप्शियल एग्रीमेंट होती है, शादी तो थोड़ा सा प्लीज क्वाइट। प्लीज चुप करो। जी आगे बच्चों के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, आप सबकी हियरिंग जो है, जो आगे आगे बैठे हैं उनको तो सब कुछ सुनाई दे रहा है और सब कुछ, वो पीछे जो बैठे हैं उनको मुश्किल हो जाता है। कृपया रवि जी ने इस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि मैं भी उछल के स्टेप इन करने वाला था कि भी मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन करूं, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूं। नहीं मैं नहीं आया, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि कृपया आप शांत रहें, इनको सुने, क्योंकि लॉ में कोई इमोशंस नहीं चलती हैं, कोई सेंटीमेंट्स नहीं चलते। बच्चों के सामने भी कोई सेंटीमेंट जो आपने लॉ के हिसाब से होगा, जज सीधा कह देता है कि मैं जस्टिस नहीं कर रहा, मैं केस को डिसाइड कर रहा हूं, जो लॉ है उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर रहा हूं, चाहे आपको इसमें जस्टिस मिले या ना मिले। कहने का मतलब ये है कि क्या लॉ है कनाडा का, मेरे लिए भी पढ़ना तो इतना बहुत कहाँ तक पढ़ता रहूँगा, तो मैं सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप सुनिएगा कि कनाडा का क्या लॉ है और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, जो इन्होंने बताए हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आपने इमोशनल, मिसेस कोहली ने कहा कि हमने बेटी के नाम पे दे दिया, सब कुछ दे दिया, और बाद में वो ये हो गया कि उनका डाइवोर्स हो गया और अब कुछ मिल नहीं रहा, अब क्या करें? अभी क्या करें, उसने सारा ट्रांसफर कर लिया। क्योंकि आपने देखना ये है कि लॉ में क्या परमिसिबल है। जैसे इन्होंने बताया कि 10 साल का और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में है, और वैसे 10 साल का अगर आप उसको क्लेम ही नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे और उसको, तो वो कहाँ आपका सरवाइव करेगा, वो नहीं कर सकता। आप इनके लॉ पॉइंट को सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि हर आदमी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपने नॉलेज को। तो एनीवे, लिसन व्हाट ही सेज, व्हाट इज द कैनेडियन लॉ, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक इट, एंड व्हाट इज सीनियर अब्यूज। काइंडली So ये please everybody, I should point out
some people here probably may want to participate, so please question आपके जो भी हैं. So एक तरीका ये है कि जैसे अगर मैंने आपको एक इंटरैक्टिव ऑडियंस बनाया है, तो अगर आप मैं किसी को पॉइंट करता हूँ और आप जवाब देते हैं, तो उस समय और कोई ना बोले, क्योंकि उसके बाद किसी और की जो अपना हाथ खड़े कर दे, तो मैं भी सुने बिना इनको डिस्कशन को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता, क्योंकि जैसे किसी की बात यहाँ सुनी, कुछ उनकी बात सुनी, कुछ पीछे सुनी, तो फिर मैं तीनों की बात को समझा सकता हूँ, तो आप सारे ही तीनों के पॉइंट समझेंगे, नहीं तो आप आपस में बातें करेंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा. सो ये चीज़ ज़रूरी, आप ये पॉइंट आपने देख लिए कि एग्रीमेंट का लिखा होना बड़ा ज़रूरी है. आपका अपने बच्चे को चीज़ दे रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए कि बच्चे को दे रहे हैं. इसमें ये क्वेश्चन कुछ पिटावरी क्या है, कोई कहते हैं अभी हमने तो दोनों को दिए, आपने प्रैक्टिस में चाहे दोनों को दिए, आप ये थोड़ी किसी को कहते हैं कि ये मेरी बेटी का है तो दामाद घर में नहीं आ सकता, ऐसे थोड़ी कोई कहता है. वो तो अंडरस्टूड ही है कि अगर जॉइंट फैमिली, अगर जॉइंट होम है तो बच्चों के लिए भी है और हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है. ये तो कोई आपको दामाद नहीं कहेगा आपने मेरा नाम क्यों नहीं किया, कोई भी नहीं कहेगा. अगर कहेगा तो ये सस्पिशन हो जाएगा कि वो अपना दामाद तो आज बना है तो पहले ही अपना नाम के क्यों इंटरेस्टेड है. तो ये चीज़ें घबराने वाली नहीं है, आप डरे नहीं, आप लॉ पे कायम रखें कि मैंने वो काम करना है जिससे मेरी प्रोटेक्शन हो और अब्यूज हो ही ना सके. और अगर आप अपने मानसिक रूप से हर चीज को समझेंगे तो अब्यूज को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी ना दें कि कोई गलत कर सके. जिस कंट्रीज में वेस्टर्न वर्ल्ड जो डेवलप हुआ है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है. अगर यहाँ की आप फोन करते हो और 911 करते हो और पुलिस आ जाती है, अगर ये ना हो सके तो इंडिया और यहाँ कोई फर्क नहीं है. फर्क यही है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर चलता है. अगर किसी ने गलत किया है वो दूसरे दिन कोर्ट में पेश होना पड़ता है, उसको वकील करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, अगर नहीं तो वो फिर अंदर. तो इसका मतलब अगर लॉ की रिस्पेक्ट हो सकती है, वो तभी हो सकती है कि हम हर चीज कानून के हिसाब से उसको समझ के, सोच के, कदम उठा के एक के बाद एक चले. अगर हम ये कर सकें तो हमारा इसी में ही प्रोग्रेस है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर बात को समझना कि अगर हमारा पॉइंट ये है कि हमको रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, अपने बच्चे को पैसे देने चाहिए, तो ये छोटी सी चीज़ है. आप किसी को अगर कोई रेस करते हैं आप समझा सकते हैं भाई हमको तो ये लीगली प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है और मैं आपको रेकमेंड करती हूँ अपने दामाद को कि आपकी लड़की हो कि आप ये सही करना, क्योंकि यही दुनिया है. अपने को प्रोटेक्ट करें, बच्चे को समझाइए, अपने को प्रोटेक्ट करें, तो एब्यूज़ का चांस कम हो जाए. ये मतलब है. तो इसी तरह स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो सो के नहीं जाएं, आपको उठ के जाएं कि ये चीज़ मेरे साथ अब हुई है तो मैंने जल्दी वापस मैं कोर्ट पे जा चुकी हूँ, मैंने अपने राइट्स. अगर वकील को कॉल करना है तो जल्दी कीजिए. ये नहीं कि 4 साल हो गए आप देखिए. अगर आप वकीलों को, मेरे को इतनी सारी कॉलें आती हैं जहाँ वो कहता है जी मेरे साथ 12 साल पहले ये हुआ था, मैं बड़ी जल्दी थैंक यू कर देता हूँ, क्योंकि वो उनको चीज़ समझ नहीं आती कि आप 12 साल के बाद आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं तो आपने कम से कम 12 महीने बाद करनी चाहिए थी. नहीं समझते लोग इन चीज़ों को. सो स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन का समझना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है. और आप कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑन्टेरियो लॉ के हिसाब से 2 साल के अंदर आपको कोर्ट में जाना पड़ता है. और ये एग्रीमेंट है, ये आप 10 साल मत समझिए, आप 2 साल समझिए. तो वो उस केस में 15 साल के बाद पेरेंट्स गए थे, उनको कुछ नहीं मिल पाया. कोर्ट ऑफ अपील ने कहा आप बहुत लेट आए. तो ये चीज़ें समझने की हैं कि ये क्या ज़रूरी है. एक प्री नप्शल एग्रीमेंट होती है, वो है शादी से पहले करते हैं. तो आपने तो शादी, जो आपकी तो शादी हो चुकी, लेकिन आपके बच्चों की शादियां जो होनी है तो वो हो सकता है प्री नप्शल एग्रीमेंट करें. प्री नप्शल एग्रीमेंट करनी चाहिए या नहीं, ये दूसरी चीज़ है. मैं किसी को नहीं कहता आपको ये हर चीज़ करनी चाहिए, वो उनके बीच में है. लेकिन अगर करते हैं तो और आप पैसे दे रहे हैं तो आपको जरूर एग्रीमेंट में आना चाहिए. अगर वो सेपरेशन एग्रीमेंट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर पैसे आपके दिए हैं तो उसके वापस जो मिलने हैं वो उसमें लिखे होने चाहिए कि मेरी मम्मी के पैसे वापस जाएंगे. अगर उसमें नहीं लिखा गया तो एक बार आपने एक तो गलती की, पहले नहीं लिखा, दूसरा उनकी सेपरेशन एग्रीमेंट हुई, आपने फिर भी ये पॉइंट रेज नहीं किया, वो फिर 3 साल निकल गए, उन्होंने जज के पास गए जी मैं तो अब तो 75 की हो गई हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया, मेरी चीज़ निकल गई. कहता है आप सोए रहे, फिर आप क्यों, आपको यही प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो उसकी सेपरेशन एग्रीमेंट में भी आपका क्लॉज होना चाहिए कि मेरी बेटी सेपरेशन अगर कर रही है, ये पैसे मेरे मम्मी को वापस दे रही है, मेरे पेरेंट्स को दे रही है, तो वो सेपरेशन एग्रीमेंट में क्लॉज होएगा उसमें. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप हर चीज़ राइटिंग में करें, चाहे प्री नप्शल एग्रीमेंट है, सेपरेशन एग्रीमेंट है, कोर्ट ऑर्डर है, उसमें प्रोविजन होनी चाहिए कि ये उन्होंने पार्टीज ने माना है. तो आपको ये चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए,
ताकि आप, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके जान पहचान वाले लोग करेंगे और करते हैं, लेकिन आम कहते होंगे कि मुझे क्या पता ये कानूनी चीज़ें हैं, लेकिन ये किताबी कानूनी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आपको असर कर रही है कि किताबी कानूनी तो तब हो इन चीज़ों का आपसे कोई मकसद ना हो। आप रोज इन चीज़ों को देख रहे हैं, किसी न किसी शेप में। मिस्टर कोहली ने अभी कहा जो हमारे साथ ये हुआ है, वो मेरे हिसाब से 5-7 ने के साथ ये बीती है, चाहे एग्जैक्टली चीज़ ना बीती हो, इस टाइप की चीज़ें बीती और बीतेंगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को लॉ के हिसाब से समझने की कोशिश करें, और ताकि आपको लॉ की प्रोटेक्शन हो सके और एल्डर अब्यूज़ की अपॉर्चुनिटी ही किसी को ना दी जाए। ये मेरा कहना है। थैंक यू। आप क्वेश्चन फाइल करने की आपने अभी एक 2 साल की लिमिट बताई, एक 10 साल की बताई। हाँ, ये आप ये चीज़ आप समझ लीजिए। आप सूट फाइल फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवोर्स। नहीं आप प्लीज, अच्छा एक चीज आप एक चीज बहुत जरूरी है। जब आप किसी वकील के लेक्चर सुनते हैं या कानूनी आर्टिकल पढ़ते हैं, आप ये मत सोचिए कि जो लॉ में है आपने आज सब सीख लिया और समझ लिया। तो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस जो है ये कॉन्सेप्ट है, हर डिफरेंट चीज में चलता है। अब जैसे आपने बात करी डाइवोर्स में 10 साल, ये डाइवोर्स में 10 साल नहीं है। नहीं, आफ्टर डाइवोर्स 10 इयर्स आफ्टर। हाँ, यही है ना। अब ये आपने एक चीज सुनी कि एक मतलब कहने का है कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस जो है एक जनरल लिमिटेशंस ऑन्टेरियो में 2 साल का माना जाता है। सो अगर आपको एक नंबर चाहिए तो वो नंबर 2 साल का है आपके लिए, ना कि 10 साल। 2 साल का नंबर है। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मतलब ये है कि 2 साल के अंदर आपको चाहिए। और कई एक इंश्योरेंस के मामले में 1 साल की भी लिमिट होती है, और कई अपीलों की 6 मंथ की भी लिमिट होती है। सो आप ये सोच के मत चलें कि हमने एक लेक्चर में सुना था उसके हिसाब से तो हम तो 2 के 4-5 साल तो बैठे ही रहे कि हमने कहा 10 साल होंगे तो 11.5 साल के बाद टेलीफोन करेंगे, ऐसा मत करें। क्योंकि यही किसी ने 15 साल बाद किया तो उनको कुछ नहीं मिला। सो कहने का मतलब है लॉ का जो भी है आप उस पॉइंट को समझें, और जो आपको लॉ अप्लाई करेगा उसके बारे में वकील से डिस्कस करें और पढ़ें, ताकि हर चीज समझ सकें। प्लीज क्वेश्चन। आपने कहा कि you can have a written agreement हाँ at जी। the time you do the transaction. हाँ जी। Supposing you've done the written transaction, written everything, but even then the statute of limitation applies. Say statute of limitation is 10 years, and you've done the written contract already, and it happens after 15 years, then what happens? वो ऐसा है कि अगर कोई इतना होशियार बनने की कोशिश करे कि 15 साल पुरानी चीज को आज की डेट में लिखे, तो वो पुरानी 15 साल नहीं हो सकती, वो तो आज की डेट की मानी जाएगी ना। जो डेट आज में एक कॉन्ट्रैक्ट हुए वो आज की डेट का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसमें इवेंट्स 15 साल पुरानी है, कॉन्ट्रैक्ट आज का है ना कि 15 साल का। समझिए ना। That's not what I'm saying. I'm saying today I've done a written contract, maybe. Okay. And say my daughter or my son got married, and I've given money to them. Now, after 15 years, their marriage breaks down, but statute of limitation is only 10 years. So their marriage broke down after 15 years. Does that written contract any good? So ये चीज़ों से, अब आपने अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इन चीज़ों से एक और क्वेश्चन उठते हैं कि आपका कहना है कि अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस है, तो इनकी तो 10 साल तो वैसे मैरिज अच्छी चली भी थी, तो मैंने उनसे चलती मैरिज में पैसे वापस थोड़ी लेने थे। तो आप कहते हैं तो आपकी दलील बन गई कि मेरे अगेंस्ट 5 साल होने चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद मेरा स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस रियल प्रॉपर्टी का चलता है। तो फिर उसमें नए नुक्ते निकलेंगे कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। सो ये प्रॉब्लम जो है, इनसे बचने के लिए अग्रीमेंट में कई चीज़ें लिखी जा सकती हैं। सो ये इस टाइप की चीज़ भी अग्रीमेंट में सोच के लिखी जा सकती है कि 15 साल बाद हो तो फिर इसकी क्या पोजीशन बनेगी। तो अगर कोर्ट में स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन नहीं भी चलेगा तो कम से कम अग्रीमेंट में लिखा है वो चीज़ तो चलेगी। मैंने तो पहले से ये भी सोच के लिखवा लिया था, तो आज की डेट में मुझे चीज़ मेरी वापस मिलनी चाहिए। समझिए ना मेरी बात। इससे यही चीज प्रूव होती है। नहीं, आप देखिए, आपने एक बात सुनी, ये मत कि ये डज नॉट अप्लाई। ये जज बताएगा, लॉ बताएगा कि अप्लाई करेगा कि नहीं, हालात क्या होंगे। लेकिन आपका काम ये है कि ऐसी चीजें टाइम से रेज करें, ये मतलब है। सर, उसके लिए सूट ऑफ रिकवरी डालनी पड़ेगी। जी, ये सारे पर्सनल क्वेश्चन जो हैं
बहुत देर इनको काफ़ी देर से बोल रहे थे। थोड़े थके होंगे बेचारे, हम भी सोच रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा प्लीज, जोरदार ताली। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा इन्होंने लेक्चर दिया। बहुत से लॉ पॉइंट निकल के आए। देखिए, ये सिविल केसेस में लॉ ऑफ लिमिटेशन है। एक हमारा जनरल लॉ ऑफ लिमिटेशन है, उसको पढ़िएगा कि किस चीज़ की कब आप डिमांड नहीं कर सकते, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है लॉ ऑफ लिमिटेशन में। लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है। अगर आप कहते हैं कि मैं इनोसेंट था, मुझे पता ही नहीं था, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, लेकिन कई बातों में जैसे अपील करने की 90 डेज की है, आप 90 डेज में अपील करेंगे, आपने 95th डे पे अप्लाई किया किसी वजह से, तो वो कंडोन कर सकती है, वेव ऑफ कर सकती है। कोर्ट के पास बड़ी पावर्स होती है। ये सिविल केसेस में नहीं। नेता सुभाष चंद्र बोस जी जब गए थे, उनकी ये र्यूमर उड़नी शुरू हो गई थी कि वो जिंदा है, वो वापस आएंगे। वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट था, अंग्रेज गवर्नमेंट थी उस वक्त। उस वक्त ये था कि उनका क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो भी टाइम बार्ड होना चाहिए। इतने साल हो गए तक, कब तक ये स्वॉर्ड जो है वो हैंग करेगी उनके सिर पर कि उनके अगेंस्ट ट्रायल हो सकता है। आप देखिएगा, इंडिया में क्रिमिनल केसेस में विच आर ट्रायबल एंड पनिशेबल विद ए पनिशमेंट ऑफ 1 ईयर, अगर 1 साल में उसकी FIR दर्ज नहीं होती है तो उसको भी टाइम बार करेंगे, वो केस भी ट्राई नहीं हो सकता। क्रिमिनल केसेस में भी अब उन्होंने टाइम बार शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है, यू मस्ट बी वेरी कॉशियस व्हाट यू आर डूइंग। आपको नहीं पता होता, आप किसी वकील की हेल्प लीजिएगा। यहाँ वकील जो है वो बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जब भी कोई आप ऐसी बात करें तो आप वकील को ज़रूर कंसल्ट कर रहे। फॉर एग्जांपल विल्स के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, कभी आप अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वही उसे हाथ ना धो बैठे। आप पावर ऑफ अटॉर्नी दें उसको किराएदार की, और वो मकान बेच के, आपने बहुत सा देखा होगा इंडिया में हमारे साथ यही चीज़ें होती हैं। तो कृपया इसके लिए आप अच्छे वकील को ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का लेक्चर पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। आज इतना इंटरेस्ट आया सभी को, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। आप ये किसी और टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, और हर चीज़ को आप उसको डेफिनेट ना ले लें। उसमें बड़े लूप होल्स होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम ये आर्गू करेंगे, तो उसमें बहुत से डिफरेंट आर्गूमेंट्स रेज किए जाते हैं और बहुत सी चीज़ों पे आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन एक इन्होंने जर्नल बताया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन है। इतनी देर तक अगर आप सुस्त रहे, आपने कोई एक्शन ना लिया, तो वो डिबार हो जाता है, वो आप लीगल रेमेडी खत्म हो जाती है उसकी। आपने किसी को लोन दिया, इंडिया में 3 साल है, 3 साल तक आप एक्नॉलेज नहीं करते उसको, और वो उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद लीगल रेमेडी ख़त्म हो जाती है। लोन तो आपने दिया हुआ है, लेकिन वो कोर्ट्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे, रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वकील जो है कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ के उसको वैलिड करवा लेते हैं और हो जाता है। तो मैं इसके साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने लेक्चर दिया। चूँकि इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है, और हमारे इंडिया में भी लॉ जो है वो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इन्होंने इंग्लिश में, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि बाईलिंगुअल कर लीजिएगा आप, इधर वो हिंदी और पंजाबी और सभी मिक्स में कर लीजिए। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उसको प्रेजेंटेशन दी है। मैं तहे दिल से और पूरे क्लब की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ, और फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार फिर ये ज़रूर आएँ और हमें किसी और टॉपिक के ऊपर ये ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।